أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you able to listen me now? Hello? Yes, sir. Hello. Okay. Yes, sir. Okay. So first of all, let us welcome you, all the pupils, to the second year of BSc. After completion of third semester, we have entered the fourth semester now. So I would like to welcome you, all the students. Now, this is the our syllabus for BSc second year, fourth semester. 6 chapters are included here. Name of the paper is Inorganic Chemistry, paper number 10. This is the time allotted for it, 45 hours, 3 hours per week. 6 chapters are included here. We will see in detail. So first chapter is Chemistry of Elements of First Transition Series. It has weightage of 10 hours. Here we are going to discuss general characteristic features of D block elements, properties of the elements of the first transition series, atomic size, ionic size, metallic properties, ionization potential, magnetic properties, and oxidation state. Some of the part you must have studied at 12th standard. 3 chapters they are of the similar type. This chemistry of lanthanide elements, this is of the same type, similar to that of D block elements. Occurrence and isolation. Isolation means separation of lanthanides. Electronic configuration of lanthanides. Oxidation state, ionic radii, and lanthanide contraction and its effects. How lanthanide contraction it affects on the properties of different lanthanides. The next is chemistry of actinides. What are actinides, etc. How they occur in the nature. What is the position in their periodic table. Electronic configuration of oxidation states of these elements. Chemistry of preparation, here is not separation. Chemistry of preparation of neptunium, plutonium, americium from uranium. You keep into consideration here. Here is not separation, it is the preparation. Starting from uranium, you have to prepare all these 3 materials: neptunium, plutonium, americium. These are artificial radioactive elements. Uranium is natural radioactive element which occurs in nature, and neptunium, plutonium, americium, these are the artificial radioactive elements. They are prepared from uranium by some sort of bombardment. Okay. In this way, these are chapters of one type: chemistry of elements of first transition series, then lanthanides, followed by actinides. Then coordination chemistry. Some of the part of the coordination chemistry you have already studied at 12th standard. Werner's coordination theory, its experimental verification, EAN, capital EAN, that is called as effective atomic number concept. Chelates or chelation, nomenclature of coordination compounds, isomerism in coordination compounds, valence bond theory, or transition metal complexes. Okay, we'll see in detail what is coordination compounds, what is coordination bond, and all that. Then acids and bases. Arrhenius concept of acids and bases, Lowry and Bronsted theory, Lux flood concept, solvent system concept, and Lewis concept of acids and bases. This chapter also, some of the part you must have covered at 12th standard: Arrhenius theory, Bronsted theory. This Lux flood concept, solvent system concept, they are not included there.
Lewis concept was included there. Lewis theories of acids and bases. Then non-aqueous solvents. Solvents which are not aqueous. They are called as non-aqueous solvents. Water is an aqueous solvent. So what are those solvents? Physical properties of solvent. What are the physical properties? Then types of solvents and their general characteristics. Reaction in non-aqueous solvents with reference to two liquids we have to study: liquid ammonia and liquid SO2. These two liquids we have to study: liquid ammonia and liquid SO2. Okay. In this way, this is the syllabus for paper number 10. Now, what are the books recommended? There are a number of books. You may take any book from inorganic chemistry, but here there are some of the books I have included. Number one is Inorganic Chemistry by Alan G. Sharp. Then this is very basic book in chemistry. Inorganic Chemistry by J. D. Lee. Inorganic Chemistry by Puri and Sharma. Inorganic Chemistry by R. L. Madan. Inorganic Chemistry by Satya Prakash. Inorganic Chemistry by Bhale and Tuli. This is called a Simplified Inorganic Chemistry by Bhale and Tuli. It is question answer type of book. Simplified course in inorganic chemistry. Question answer type book is there, called as Simplified course or refresher course in inorganic chemistry by Bhale and Tuli. Along with this, there are many more books. Inorganic Chemistry by Agrawal is there. Then Inorganic Chemistry by Malik. Very good book. Inorganic Chemistry by Malik is there. I have not included here. These are all the reference books. Along with this, there is also a textbook called as Concepts in Chemistry. Textbooks means which is written exactly according to the syllabus. It will follow only syllabus. It will not include other points rather than syllabus. Okay, those books are called as textbooks. So that is Concepts in Chemistry by Mazhar Farooqi. Three authors are there. One of the main author is our Mazhar Farooqi sir and all pupils. Three authors are there. Okay, but this, what do you say? Whenever textbook is there, it contains large number of mistakes. Sometimes those may be printing mistakes. Mistakes may be printing mistakes. So we say that you should not follow those textbooks. You keep it for reference only. You take from the syllabus point of view, what is the syllabus that you can see there. And for detailed study, you can look at these books: Puri and Sharma, R. L. Madan, Satya Prakash, J. D. Lee, Bhale and Tuli, Alan G. Sharp. Okay, these are the books which are used worldwide, throughout the universe, throughout the world. So there are very less number of mistakes are there. Since these textbooks, they are written according to the syllabus of near universities, so they are followed in constricted areas. That area will cover our Marathwada University area plus SRTM, that is Nanded University area. ये इलाके के अंदर में यूज़ होंगे, उसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स रह जाती है, इसलिए हम ये एडवाइस करते हैं कि यू गो फॉर द रेफरेंस बुक्स. यू गो फॉर रेफरेंस बुक. रेफरेंस बुक आपके सामने रखिए, ठीक है. लेकिन रेफरेंस बुक जब आप सामने रख रहे हो तो उस वक्त आपके सामने सिलेबस भी रहना चाहिए, ठीक है.
जैसे आप देख रहे हो केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बहुत सारे उसके अंदर में सिलेबस इंक्लूड किया हुआ है। तो आपको क्या देखना है उसमें से, आप ये देखते चलेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है, आयोनिक साइज, एटॉमिक साइज, मेटेलिक प्रॉपर्टीज, आयोनाइजेशन, ये पॉइंट्स आपको कवर करते हुए चलना है, ठीक है। बुक की साइज थोड़ी बड़ी होती है, उससे बच्चे घबरा जाते। घबराने की बात नहीं कि हमको वो बड़ी बुक के अंदर में से इतने ही पॉइंट कवर करना है, ठीक है। जैसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ले रहे, इसका वास्ट सिलेबस है, लेकिन उसके अंदर में से हमको क्या देखना है, वर्नर्स थ्योरी देखना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखना है, चिलेशन का कॉन्सेप्ट देखना है, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके साथ में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इतना ही देखना है। तो जब रेफरेंस बुक आप सामने रख रहे हैं, तो रेफरेंस बुक रखते वक्त ये सिलेबस भी आपके सामने रहना ज़रूरी है। अगर सिलेबस नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसके अंदर अपने क्या पढ़ना, बहुत बड़ा सिलेबस दिख रहा है, ठीक। केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स में क्या पढ़ना है, तो ये सिलेबस दिया हुआ, सिलेबस जो दिया हुआ है उसके पॉइंट्स हमको बुक के अंदर में से लेना है, ठीक। So before start, let us see what is the chemistry. There are various branches of science. So chemistry is one of the main branch. Physics is one of the branch. Physics deals with the properties of the substances, and broadly speaking, physical properties of the substances. And this chemistry is concerned with the composition of the substances. What is the composition of the substance? It deals with the nature and properties of the substances. What is studied here? Nature of the substance and properties of the substance. These two things, they are studied in chemistry. Suppose you take an example of chalk piece. Chalk piece it is made up of calcium carbonate, isn't it? Then if you have to study chemistry of that chalk piece, then what you will see? First you will see what is the nature of that substance, okay, whether it is solid, gas, liquid, or anything more than this, semi solid, etc. nowadays, okay. First of all you will look at the nature. What is its nature, whether it is solid, liquid, gas, or something other than this, okay. Then you will look at the properties of the substances. What are its properties? Whether it is soluble in water, whether it is soluble in other organic solvents, inorganic solvent. What is the action of heat? Okay. What is the action of different different chemicals? Action of HCl, action of HNO3, okay, action of H2SO4 on that calcium carbonate or chalk piece. So, okay, depending upon the properties, you will come to know the application of the substance. Okay, from the properties, whatever properties are there, you will look at the properties of the substances, and from the properties of the substances, you can derive, you can come to the conclusion regarding the application of the substance. आपको जो भी सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज आप देखेंगे, और प्रॉपर्टीज देखते वक्त आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आप ये कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, इसका इस्तेमाल, इसका यूज आप कहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। So in this way, a branch of science which deals with nature and properties of the substances, it is called as the chemistry. क्या करना है आपको? कोई भी सब्सटेंस है उसका नेचर देखना है और उसके प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज दो टाइप के होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल डिसाइड द एप्लीकेशन ऑफ द सब्सटेंस। प्रॉपर्टीज के अंदर में आ जाएगा इसकी केमिकल स्टेबिलिटी कितनी है, कौन से टेम्परेचर को ये मेल्ट होता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर को अगर मेल्ट होता है तो फिर हम इंडस्ट्रियल कंटेनर्स वगैरह के अंदर में उसका यूज कर सकते हैं क्या, उस सब्सटेंस का,
ठीक है, जैसे हम टिफ्लॉन देख रहे हैं, ठीक है, PTFE जिसको हम बोलते हैं पॉलीइथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन जिसको हम बोलते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, जो हमारी इस्त्री है, प्रेस है, जिससे हम अपने कपड़े प्रेस कर रहे हैं, उसका बॉटम देखते थे, वो कैसे बना हुआ है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, PTFE जिसको बोलते हैं, सुरमई कलर का है, ब्लैक कलर का है, ठीक, ये कलर का बेस है उसका, तो क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन है। इथिलीन में कि 4 जो हाइड्रोजन एटम्स है उसको रिप्लेस किया गया है फ्लोरीन एटम्स से, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज स्टेबल एट हाई टेम्परेचर्स, हाई टेम्परेचर के ऊपर भी स्टेबल है कंपाउंड, हाई टेम्परेचर के ऊपर भी उसके ऊपर कुछ असर नहीं होता, वो अपने प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करता, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हमने देख ली, इसलिए हम अप्लाई करते हैं उसको, कहाँ पर अप्लाई किया हमने, इस तरीके नीचे, ठीक है, बॉटम ऑफ दी दैट प्रेस। फिर इंडस्ट्रियल कंटेनर्स के अंदर की जो लाइनिंग है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के अंदर कंटेनर्स होते हैं, उसकी इंटरनल लाइनिंग हाई टेम्परेचर के ऊपर ऑपरेट होते हैं, तो उसके अंदर भी हम यूज करते हैं। फिर उसके बाद किचन यूटेंसिल, पकाने के जो बर्तन है आपके यूज कर रहे हैं, जैसे निर्लेप नॉन स्टिक किचन यूटेंसिल्स बोल के आप यूज कर रहे हैं, ठीक, यूज कर रहे हैं आप किचन वगैरह के अंदर में, देखे होंगे आप लोगों ने, हेलो, देखे होंगे ना आप लोगों ने, Yes. Yes, sir. हाँ, निर्लेप का तवा आता है, ठीक है, निर्लेप की, और क्या बोलते हो, कढ़ाई आती है, ठीक है, उसके अंदर में काले किस्म का एक लेयर दिया हुआ है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जो भी आप कुक कर रहे हैं, जो आप पका रहे हो, तो पकाने वाला मटेरियल आपका उसको स्टिक नहीं होता, बर्तनों को स्टिक नहीं होता, ठीक, बर्तनों को चिपक नहीं जाता, ठीक है। तो क्या है वो, दैट इज नथिंग बट दैट इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, वो एक पॉलीमर है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, हाई टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल है, इसलिए हमने हाई टेम्परेचर के पकाने के अंदर अब हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए हमने वहां पर उसको अप्लाई कर दिया। इंडस्ट्रियल कंटेनर्स के अंदर में हाई टेम्परेचर है, वहां पर भी हम उसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस तरह से नेचर हम देखते हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस देखते हैं, नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस, इसके ऊपर से हम डिसाइड करते हैं कि एप्लीकेशन कंपाउंड का क्या होना चाहिए, वो सब्सटेंस जो है उसका एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये डेफिनेशन के बारे में होगा ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन है, कार्बन है, इसके साथ में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन भी है, ठीक, लेकिन बेसिक कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों होना चाहिए उस कंपाउंड के अंदर में, और उसके साथ में फिर सल्फर, नाइट्रोजन वगैरह ले सकते हैं, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजेंस एटसेट्रा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स ले लिए, और उसके बाद देयर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स यानी उससे हासिल होने वाले कंपाउंड, ठीक है, जैसे हमने मीथेन देख लिया, इथेन देख लिया, ठीक है, फिर मीथेन से मेथिल क्लोराइड तैयार हुआ, मीथेन से मेथिल साइनाइड तैयार हुआ, मेथिल अमाइन तैयार हो गया, ठीक है, दीज आर डेरिवेटिव्स, ठीक है, मेथिल अल्कोहल तैयार हो गया। तो इन दिस वे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। जैसे हमने इससे पहले आपने टर्म के अंदर आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल, ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ फिनॉल आपने पढ़ी है। फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखा है, ठीक है। तो इन दिस वे स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स, इट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 ब्रांचेस है मेन, वैसे तो बहुत सारे, लेकिन 3 ब्रांचेस मेन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ, इसमें हाइड्रोकार्बन की, कार्बन के साथ में जो एलिमेंट्स है उसके हम स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ कार्बन एलिमेंट को ले रहे हैं और उससे हासिल होने वाले कंपाउंड्स। इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है। बाकी जितने एलिमेंट बचे हैं उसके सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स है अभी, हेलो, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल, 118. हाँ, वेरी गुड, 118 एलिमेंट्स, 118. 118, वेरी गुड। 118.
तो इसमें हम जो स्टडी करें ज़्यादातर एक एलिमेंट की स्टडी करें, कार्बन कंपाउंड्स की, और इसके अंदर में बचे हुए अब 117 एलिमेंट्स और उससे हासिल होने वाले कंपाउंड्स, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में आ रहे हैं। अब बचा क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में क्या आ रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ठीक है, लॉज एंड थ्योरीज इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं तो आप गौर करेंगे कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में क्या आ रहा है। फंडामेंटल प्रिंसिपल, बुनियादी उसूल, ठीक है, लॉज, अलग अलग लॉज, ठीक है, थ्योरीज, काइनेटिक थ्योरी गैसेस आपने पढ़ा है, काय में पढ़ा है वो, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में पढ़ा है। ठीक, बॉयल्स लॉ पढ़ा है आपने, ठीक है, चार्ल्स लॉ पढ़ा है, कहाँ पर आया वो, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में आया। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, और उसके बाद फंडामेंटल कुछ कवानीन है, फंडामेंटल उसूल है, ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन वगैरह है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल काय में पढ़ने जा रही है, सब हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ चुके। ठीक है, थोड़ा अगर आप याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी फिजिकल केमिस्ट्री हम क्या स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, लॉज एंड थ्योरीज इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो थ्योरीज है वो इन्वॉल्व, कौन कौन सी थ्योरीज इन्वॉल्व है। ठीक है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के अंदर में देख रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी और उससे हासिल शुदा कंपाउंड। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया है, फिनॉल आपने स्टडी किया है। ठीक है, फिनॉल का नेचर क्या है, उसका प्रिपरेशन क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, फिर उससे कौन कौन सी चीज़ें हासिल होती है। ठीक है, फिनॉल्स हो गया, एल्डिहाइड्स हो गया, कीटोन्स हो गया। ठीक है, सब में इसी टाइप की स्टडी हम करते हैं कि कंपाउंड का नेचर क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, प्रिपरेशन क्या है। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स। इनऑर्गेनिक में क्या स्टडी कर रहे हैं हम, बचे हुए एलिमेंट्स। ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स, थर्ड रॉ एलिमेंट्स का भी स्टडी किया है आपने। ठीक है, अभी पी एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट ईयर के अंदर में आपकी स्टडी हो गई है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यस और पी आप फर्स्ट ईयर के अंदर में स्टडी कर चुके हो। ओके, तो इसलिए ये सेकंड ईयर के अंदर में डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रखा गया है। ठीक है, इस तरह से ये सिलेबस है और ये हमारी पहली मीटिंग है। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू मे आस्क। ये सिलेबस है और सिलेबस का पीडीएफ भी मैं अभी थोड़ी देर के अंदर आपको भेज कर दे दूंगा। ठीक है, ये सिलेबस है, सिलेबस को बाइफरकेट करके भी लिया है हमने, दो हिस्सों के अंदर ये 3 चैप्टर है। ठीक है, ये 3 चैप्टर है। इस तरह से ये बुक्स है, इसके अंदर में मलिक की एक बुक ऐड करो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मलिक। ठीक है, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू मे आस्क। No, sir. Okay, should we stop there? Okay, should we stop now? बुक्स वगैरह के Yes, बारे yes, में sir. आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं, ये बुक्स है। ठीक है, ऊपर जो 5-6 बुक्स है, ऑल बुक्स दे आर easily available in the library. And one more thing, we are having a what is a online software called as MOPAC, Open Public Access Catalog। MOPAC के ऊपर जाकर भी आप चेक कर सकते हो कि हमारे ये लाइब्रेरी के अंदर में कौन से बुक्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने यूज भी किया होगा, यम ओपेक के अंदर आप जाइए। ठीक है, आपके मोबाइल के ऊपर भी ऑनलाइन ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। सबसे पहले गूगल के ऊपर जाएंगे, यम ओपेक डालिए, यम ओपेक डालने के बाद मीडिया कॉलेज का नाम डालिए, हमारी लाइब्रेरी वहाँ पर खुल जाती है। फिर आपको जो भी बुक का नाम डालना है वो बुक डालिए, वेदर इट इज़ अवेलेबल और नॉट विद दैट टाइटल, इट विल बी विजिबल टू यू। ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, MOPAC बोलते हैं उसको। द सॉफ्टवेयर इज देट, थ्रू दैट सॉफ्टवेयर you can get the books in the library which are available। तो आप वो भी MOPAC को भी यूज करके देखिए।
यूज किया है क्या आप लोगों ने अभी तक? हेलो, किसी ने यूज किया है कि ओपेक का अभी तक? No, sir. No, sir. हाँ, नहीं करे तो यूज करके No, देख। sir. m.opac, Okay. m.opac, एम ओपेक बोलते हैं उसको। हमारे लाइब्रेरी के अंदर सामने ही बोर्ड लगा हुआ है कि एम ओपेक फैसिलिटीज देयर। हमारे लाइब्रेरी के अंदर एम ओपेक ये फैसिलिटी अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है हमारे बुक्स के अंदर में। हमारे लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन से बुक्स है आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर देख सकते हैं, वेदर इट इज अवेलेबल और नॉट। ठीक है, आई विल स्टॉप हियर नाउ। ओके, जज़ाकल्लाह हाँ जैसा सर।